ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، دلی میں اتنا بڑا فساد ہوا، آپ نے اب تک اپنی زبان کو نہیں کھولا؟ ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، محترم پردھان منتری صاحب، اتر پردیش میں کل آپ نے دو تقاریر تو کی، سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات تو آپ نے کی، جو آپ کا پسندیدہ ڈائیلاگ ہے، مگر آپ نے دلی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ بھارت کے وزیر اعظم سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ پردھان منتری، کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کے گھر سے زیادہ دور کے فاصلے پر نہیں، بہت نزدیک، جس گھر میں آپ رہتے ہیں، جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، وہ بھارت کی جنتا کا گھر ہے۔ اس گھر سے آدھا گھنٹے کے 20 منٹ کے فاصلے پر، جس میں اب تک 40 سے زائد بلکہ 42 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، مارے گئے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں پردھان منتری، آپ جانتے ہیں پردھان منتری کے 80 سے زائد لوگوں کو گولی لگی؟ پردھان منتری کہ کروڑوں روپے کی جائیدادوں کو جلا دیا گیا، نقصان ہو گیا۔ ہم بھارت کے وزیر اعظم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ ایک آئی بی کا آفیسر جس کا نام ورما ہے، اس کو مار دیا گیا، اور اتنا بے دردی سے انکت کو مارا گیا کہ اس کو جسم پر کئی چاقوں کے وار مار کر اس کی لاش کو ڈرین میں پھینک دیا گیا۔ بھارت کے وزیر اعظم کیا جانتے بھی ہیں کہ وہ جو 4 بچوں کا ویڈیو آیا تھا پرائم منسٹر، آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور اپنی دن کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بھارت کے جتنے اپوزیشن کے لیڈرز ہیں ان کی نیوز آپ کو دی جاتی ہے، اور اس کا مطالعہ آپ دیکھتے ہیں اپنے آئی پیڈ کے اوپر۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 مسلم بچوں کو لٹا کر پولیس مارنے کے بعد ان سے کہہ رہی ہے کہ جن گن من پڑھو، اور ایک بچہ تکلیف سے لیٹے لیٹے جن گن من پڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم، آپ جانتے ہیں کہ ان 4 بچوں میں ایک اودی ٹی شرٹ پہنا ہوا بچہ تھا جس کا نام، پردھان منتری، اس فیضان کی عمر 23 سال کی تھی، جو پولیس کی لاٹھیوں اور گولی کا شکار ہونے کے بعد بھی پولیس کے ظلم کی وجہ سے، اصرار کی وجہ سے جن گن من پڑھ رہا تھا۔ پردھان منتری، آپ کو معلوم کہ فیضان کی موت ہو گئی، اور اس کی ماں نے کیا کہا؟ پردھان منتری سنیے، اس کی ماں نے کہا کہ جب فیضان کی لاش کو گھر کو لایا گیا تو فیضان کے کھوپڑی سے خون بہ رہا تھا، فیضان کا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا۔ پردھان منتری، آپ یہ جانتے نہیں ہوں گے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو، تاکہ آپ تک ہم دیوانوں کی آواز پہنچ جائے۔ پردھان منتری، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک 85 سالہ مہیلا جس کا نام اکبری بیگم تھا، وہ جل گئی اپنے گھر میں؟ وزیر اعظم 85 سالہ مہیلا ہیں، آپ تو مسلم مہیلاؤں سے دعویٰ کیے تھے کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ اکبری بیگم 85 سالہ ایک ضعیف عورت اپنے گھر میں جل گئی، خاندان والے ڈر کی کیفیت میں چھت پر چلے گئے تھے، وہ ویڈیو BBC نے جاری کیا تھا، پردھان منتری آپ دیکھ لیجئے۔ تو گڑبڑ میں جب بازو سے سیڑھی سے اتارا گیا تو ہیبت اور وحشت کی وجہ سے لوگوں نے بھول گیا کہ گھر میں ایک ضعیف ہماری دادی بھی ہے، ماں بھی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اکبری بیگم ختم ہو گئی۔ پردھان منتری، کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ ایک آلوک تیواری 24 سال کے بچہ مر گیا؟ پردھان منتری، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیش کمار 35 سال کا ایک ڈرائیور ہے، اس کو مار دیا گیا؟ وزیر اعظم بھارت، کیا آپ جانتے ہیں کہ ویر بھان نامی ایک بھارت کے شہری کو سر پہ گولی ماری گئی؟
तो जाकिर जो 26 साल का है उसके भी सर पे गोली मारी गई। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि राहुल सोलंकी 26 साल का सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा, उसको मार दिया गया। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि दीपक कुमार को गोली मार दी गई। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि राहुल ठाकुर 23 साल का था, वो भी मार दिया गया। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि सुलेमान जो लोहारा था, वेल्डिंग का काम करता था, उसको मार दिया गया, उसकी दुकान जला दी गई। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद शाबान 22 साल का वेल्डर था, उसको मार दिया गया। रतन लाल पुलिस कांस्टेबल थे प्रधानमंत्री, उनको मार दिया गया। अनवर 58 इयर्स के, उनको जिंदा जला दिया गया। अमीन एक 17 साल का बच्चा, उसको मार दिया गया। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि मुदस्सिर खान एक ऑटो ड्राइवर था, उसको खत्म कर दिया गया। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि आमिर और हाशिम 2 भाई थे प्रधानमंत्री, आमिर की उम्र 30 साल, हाशिम की उम्र 17 साल, दोनों को खत्म कर देगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या आपने सुना होगा कि एक घर में 2 भाइयों का जनाजा एक साथ उठाया गया। प्रधानमंत्री क्या आपने सुना कि एक तरफ एक भाई का हाशिम का सर, दूसरी तरफ 17 साल के आमिर का सर, उसका जनाजा उठाया गया। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि मुशर्रफ को गोली मारकर ड्रेन में फेंक दिया गया, मोनिस को मार दिया गया। प्रधानमंत्री क्या आप जानते भी हैं कि आपने तस्वीर देखी होगी प्रधानमंत्री, मुदस्सिर खां के बेटे की जो अपनी बाप की लाश के बाजू खड़े होकर रो रहा है। प्रधानमंत्री मुझे तो नींद नहीं आई जब से मैंने मुदस्सिर और अंकित की मां का इंटरव्यू सुना, मुझे अब तक रातों में नींद नहीं आती। प्रधानमंत्री आपको आती होगी तो हमको भी बताइए, कैसे सोना अब हम बताओ प्रधानमंत्री, हम कैसे सोएं, कैसे सुकून लें? क्योंकि मुझे मुदस्सिर के बेटे की अपने बाप के लाश के सामने खड़े होकर रोते हुए देख वो तस्वीर मुझे अपनी औलाद की याद दिलाती है। अंकित की मां का इंटरव्यू में कहना, वो आईबी का ऑफिसर अंकित शर्मा, कि मेरा बेटा काम को जाकर फोन करता था कि अम्मा तूने दवा ली नहीं ली। वो इतनी अपनी मां से मोहब्बत करता था अंकित शर्मा कि अपनी मां से पूछता था, बता मां पिताजी को पैसे दूं या ना दूं। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि एक बीएसएफ का ऑफिसर था जो 3 साल जम्मू में, जिसने 3 साल जम्मू में खिदमत दी, बीएसएफ का ऑफिसर, वहां पर पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों से मुकाबला करता था। वो उसका नाम है मोहम्मद अनीस। उसके घर पर लिखा हुआ था प्रधानमंत्री कि मैं बीएसएफ का कांस्टेबल हूं, तो जालिमों ने घर में घुसकर मोहम्मद अनीस के घर को जला दिया। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद अनीस के घर वालों ने कहा कि हम इंस्टॉलमेंट में ज्वेलरी खरीदते थे ताकि अनीस की शादी कराएंगे और उसकी एक कजन की शादी कराएंगे। उनकी 5 लाख की ज्वेलरी जल गई, 10 लाख जल गए। प्रधानमंत्री आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं, आपको शायद नहीं मालूम होगा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक आपने कुछ नहीं कहा। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप भारत के वजीर आजम हैं, दस्तूरी इखलाकी जिम्मेदारी आप पर है, आप कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे आप, क्योंकि मरने वाले प्रधानमंत्री पूरे भारत के, ये कोई दूसरे मुल्क के नहीं है, ये भारत के शहरी हैं। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। कुछ तो बोलो प्रधानमंत्री, खामोशी को तोड़ो। प्रधानमंत्री मैं आपको दावत दे रहा हूं, क्या आप जानते हैं कि राम कुमार पासवान का 15 साल का बेटा नितिन 9th क्लास का था, वो मर गया, उसको मार दिया गया। प्रधानमंत्री क्या आप इतनी हिम्मत करके शिव विहार को जा सकते हैं? प्रधानमंत्री आप, हम भारत के वजीर आजम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कभी चले जाइए ना शिव विहार को, जाकर देखिए शिव विहार में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री क्या आपको मालूम कि इन फसादात में मुसलमानों ने जो मिक्स लोकेलिटी में रहते थे उन्होंने अपना घर बार छोड़कर चले गए। प्रधानमंत्री क्या आप उनको वापस लाकर उस मोहल्ले में रखेंगे?
क्या प्रधानमंत्री करेंगे ये काम? क्योंकि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर मरकजी हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। प्रधानमंत्री, हम आपसे पूछ रहे हैं और आपसे पूछने का हमको पूरा हक है। अगर ये हेट स्पीच है तो भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जब तक जिंदा रहूंगा हक को बयान करूंगा और मेरी जबान उसी वक्त खत्म होगी जब मेरी आंख बंद हो जाएगी। और मेरी आंख बंद होने से पहले भी इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे ऐसे अपनी जमात के जिम्मेदारों को तैयार करेंगे कि बेटा तुम हमसे ज्यादा अच्छा बोलना, और बोलेंगे। बेटे भी बोलेंगे, बेटियां भी बोलेंगी, बच्चे भी बोलेंगे, महिला भी बोलेंगे, मगर प्रधानमंत्री कुछ बोलते ही नहीं है। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते कि यह फसाद एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ और आपके ज़हनियत, आपकी पार्टी के लोगों के बयानात की वजह से फसाद हुआ? प्रधानमंत्री, ये बड़ी तैयारी के साथ हुआ प्रधानमंत्री। ये कम्युनल राइट, ये कम्युनल राइट उसको नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक प्रोग्राम था। प्रधानमंत्री, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 2002 से आपने कुछ लेसन लिया होगा और दोबारा होने नहीं देंगे, क्योंकि 2002 में जेनोसाइड हुआ, अब 2020 में दिल्ली में जेनोसाइड हुआ। प्रधानमंत्री, 2 डिकेड्स में 2 जेनोसाइड। बताओ प्रधानमंत्री, ये क्या हो रहा है? क्यों आपके लीडर ने बयान दिया था और लोग बोलते नहीं नहीं, क्यों देगा वो? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों और टीवी के जिम्मेदारों और टीवी के चैनल पर जो एंकर बैठते हैं, जो मोदी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वजीर आजम से वो मोहब्बत करते हैं, और मैं वजीर आजम के उस अजीम विजारत उज़्मा के ओहदे की इज्जत करता हूं, शख्स की नहीं, ओहदे की इज्जत करता हूं मैं। हम उन एंकरों से भी पूछना चाहते हैं कि कभी ये सवालात क्यों नहीं करते आप? मगर क्या करेंगे बेचारे, अगर पूछ लेंगे तो फिर उनसे भी कुछ हो जाएगा। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि एक मुस्लिम खानदान को एक हिंदू ने बचाया, एक हिंदू ने बचाया, और वो मुसलमान एनडीटीवी के एक क्लिप में कह रहा है कि मैं घर पे छुप गया ऊपर जाकर, तो मैं नीचे देख रहा था, मेरे भाई को दंगाइयों ने पकड़ लिया, गोली मारी, मेरा भाई नीचे गिरा, फिर उठा, फिर गोली मारी, उसके बाद मेरे भाई को जला दिया। और हिंदू के अखबार की आज रिपोर्ट है कि उस खानदान के उस बड़े भाई ने जो बयान किया, उसने मॉर्चरी में जाकर अपने भाई का एक कटा हुआ पैर को देखकर कहा कि यह मेरा भाई है, क्योंकि भाई को मालूम था कि भाई के पैर के उंगलियों के नाखून टेढ़े थे, कहा यह मेरा भाई है। प्रधानमंत्री, अब तो जिस्म भी नहीं मिल रहा है प्रधानमंत्री, खाली टांग मिल रही है प्रधानमंत्री, कुछ तो बोलो प्रधानमंत्री। आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बीजेपी के नहीं हैं। आप सिर्फ उन 3 लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है जिनकी तकारीर की वजह से यह तमाम फसाद हुआ एक मंसूबाबंद तरीके से। बताओ आप, ये हिंदू अखबार की आज की रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स के एक मशहूर एडिटर हैं शिशिर गुप्ता ने अखबार में लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स में, कि बसेस में लोगों को लाया गया था गड़बड़ कराने के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स, मैं जो कुछ कह रहा हूं अपने दिमाग से नहीं, पढ़ के कह रहा हूं। हम वजीर आजम से जानना चाहते हैं क्या हो रहा है भारत में। भारत की राजधानी, भारत का दारुल हुकूमत, भारत का कैपिटल, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली में शिव विहार से लोग कह रहे हैं कि शिव विहार एक खंडेर नजर आ रहा है, भूत बस्ती नजर आ रही है शिव विहार। कौन है प्रधानमंत्री ये लोग जो कह रहे हैं गोली मारो देश के गद्दारों को? प्रधानमंत्री कौन है ये लोग, बताओ ना। प्रधानमंत्री, हमने समझा था कि 6 दिसंबर 92 में मस्जिद को शहादत के बाद दोबारा हम नजारा नहीं देखेंगे, मगर अशोक नगर में हमने देख लिया प्रधानमंत्री कि लोग मस्जिद की मीनार पर चढ़कर स्पीकर को तोड़ते हैं, उस पर भगवा झंडा लगाते हैं और नीचे लोग खड़े थाली मारते हैं। प्रधानमंत्री, टाइम्स ऑफ इंडिया की अखबार की रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट है कि जब मुसलमानों की बस्तियों में मुसलमान आए थे एक मंदिर पर हमला करने के लिए, तो मुसलमानों ने ह्यूमन चेन बनाकर
दुर्गा की मंदिर को बचाया। प्रधानमंत्री ये कौन है जिन्होंने मंदिर को बचाया? आप जानते हैं उनको? इनके कपड़े देखकर आप बता दीजिए कौन थे लोग, बताइए ना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे। एक 17 साल का बच्चा है प्रधानमंत्री, जिसका नाम हरीश सिंह है। जब गड़बड़ हुई तो एक मुसलमान के पड़ोसी था, उस मुसलमान ने उसकी गर्दन पकड़कर अंदर जा तू। उस हरीश सिंह के वालिद दिल्ली के ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर हैं, उन्होंने फोन कर कर पूछा मेरा बेटा कैसा है? तो उस शख्स का नाम वहाब था। तो हरीश सिंह ने, 17 साल के नौजवान ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा मैं वहाब भाई के घर में आराम से हूं। और ये बात प्रधानमंत्री आप जानते भी हैं कि एक बाघेल साहब है प्रधानमंत्री, बाघेल साहब हैं। जब उनके पड़ोस में घर में आग लगी तो बाघेल साहब ने जलते हुए घर में घुसकर 7 मुसलमानों की जान को बचाया और खुद 70% जल गए। प्रधानमंत्री इनके बारे में तो बोल दो ना, कम से कम बाघेल के बारे में बोल दो। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि एक पुलिस के कांस्टेबल हैं शिव विहार के, उनका नाम मोहम्मद इरफान है। उन्होंने 35 मरतबा, पुलिस का कांस्टेबल है प्रधानमंत्री, पुलिस कांस्टेबल ने 35 मरतबा पुलिस को फोन किया कि आओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। तो 9 घंटे के बाद प्रधानमंत्री आपकी पुलिस आई और वो पुलिस कांस्टेबल आज ये कह रहा है कि मैं लोग आवाम से मंग कर कपड़े पहनकर नौकरी पे जा रहा हूं, मेरे पास पहनने को कपड़े भी नहीं है क्योंकि मेरा घर जल गया। प्रधानमंत्री ये जो फसाद हुआ है ना, ये मंसूबाबंद तरीके से हुआ है, ये टारगेटेड स्ट्रक्चरल वायलेंस है और ये इसकी जिम्मेदारी आपकी हुकूमत पर आती है प्रधानमंत्री। The Delhi right responsibility lies at the doorstep of the BJP government. ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नाकामी है, आपने आंखें बंद कर ली। लोग बोलते हैं मुझे कि आपने क्यों मिलाया लिख जाकर उसको गुजरात से। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री जनाब मोदी साहब, आप जानते हैं कि एहसान जाफरी ने 3 घंटे 4 घंटे 2-3 घंटे पुलिस को फोन किया था, पुलिस नहीं आई। जबकि एहसान जाफरी ने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को भी फोन किया, पुलिस नहीं आई। दंगाई घुसे, एहसान जाफरी के जिस्म के 10 टुकड़े किए और उनकी बीवी के सामने जिस्म को जला दिया। वो रुकने साबिका रुकने पार्लियामान थे। अब प्रधानमंत्री, हमारे भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, इंशाल्लाह आप भी एक दिन एक्स प्राइम मिनिस्टर होंगे प्रधानमंत्री, सब होंगे। नरेश गुजराल, इंदर कुमार गुजराल वजीर आजम के बेटे हैं, MP हैं, उन्होंने खत जारी किया कि मैंने कई घंटे पुलिस को फोन किया कि बचाओ इन मुसलमानों को, कोई पुलिस मेरा जवाब नहीं दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो बच्चा आप जानते होंगे प्रधानमंत्री जुबैर को, प्रधानमंत्री आप जानते हैं जुबैर कौन है? जुबैर वो है जो सजदे में पड़ा हुआ है और जुबैर के तरफ तमाम शयातीन जमा होकर जुबैर को लट और तलवार से मार रहे हैं। और जुबैर की गलती ये थी प्रधानमंत्री कि वो इज्तिमा से वापिस आ रहा था, इज्तिमा में दुआ की गई थी, तो उसका यकीन था कि जब दुआ हुई तो वहां से कुछ फल और मीठा अपने खानदान के लिए लेकर आऊंगा। तो जालिमों ने जो बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, उन्होंने ही जुबैर को घेर लिया, खूब मारा जुबैर को प्रधानमंत्री। जुबैर के सर पे प्रधानमंत्री 30 टाके हैं, जुबैर के सर पे प्रधानमंत्री 30 टाके हैं। प्रधानमंत्री क्या आप जुबैर को एक फोन कर सकते हैं? क्या जुबैर को एक फोन कर सकते हैं भारत के वजीर आजम कि जुबैर फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? नहीं प्रधानमंत्री, अब तक तो फोन नहीं आया। प्रधानमंत्री वो फैजान बच्चा जिसका वीडियो सब देखे, ब्लू टी-शर्ट में जो मर गया, जिसके जबड़ा टूट गया, खोपड़ी से खून बह रहा है, प्रधानमंत्री क्या आप उन पुलिस वालों को सजा दिलाएंगे? प्रधानमंत्री क्या आप SIT बना दिए? SIT इंसाफ नहीं करेगी,
84 में सिखों کی نسل کشی ہوئی تھی, سکھوں کے گلوں میں جلتے ہوئے ٹیر ڈالا گیا تھا ہزاروں کی تعداد میں دلی